ਸਾਥੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 334 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘਾਤਕ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 18 ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ। और जिसे आखिरी पड़ाव आ गया कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर तो लैके अज 47 दिन बीत चुके आ मरण अनशन से बैठा। और कल साढ़े साथी संयुक्त मोर्चे वाले इतने पुजे और उन्होंने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल का हेलो भाई आवाज आए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके नाल असी उन्होंने वालों जो पत्तर अपने मोर्चे में पुजा दोनों फोरमां कि मीटिंग के सदे नहीं और समय के हालातों के मुताबिक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत के मुताबिक और इत्थे जिहड़े साडे लीडर आ मोर्चे दे विच उन्हां नूं वड्डे पद्धर ते 24 घंटे इत्थे जिहड़ी हाज़री भरनी पैंदी आ ते बहुत ही घातक समय दे विच ही अपने लीडर निकल रहे हैं। और मीटिंग बाहर जाके बड़ी वड्डी समर्था नहीं कर सकते और इहदे च फौरी संयुक्त किसान मोर्चे नूं एमरजेंसी मीटिंग वास्ते कल जां परसों वास्ते इत्थे अपील कीती आ कि तुसीं इत्थे पुजे जी हाल चाल पुछण वास्ते। और तुहाडा तहे दिलों धन्नवाद करदे हां ते उहदे नाल नाल कि जिहड़ी अपने वालों पत्र जाना वा वो सरदार सुखजीत सिंह दो झंडे तुहाडे सामने रूबरू कर देणगे और उन्हां तक ये पहुँचदा पत्र करना, क्योंकि समय की नजाकत वेख के और इत्थे मीटिंग रखी जाए तो बहुत ठीक रहूगा, क्योंकि बाहर समय के हालातों को वेख के असीं नहीं जा सकते। इस करके संयुक्त किसान मोर्चे को अपील आ कि अगे वधन वास्ते जां होर जो चिट्ठी दे विच लिखिया तुहानूं पढ़ के सुना देनी आ और उहदे ते एमरजेंसी मीटिंग जिहड़ी आ वो कल जां परसों कनौरी विच ही कीती जावे, क्योंकि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की जिहड़ी सेहत आ वो बहुत नाजुक आ और साडे साथी जिहड़े आ इन्हां दी बाहर जाण दी समर्था नहीं। धन्नवाद जी। पत्रकार दोस्तों, ये जो लैटर किसान मजदूर मोर्चा और SKM नोट पर्टिकुलर जो वा SKM में लिखा गया वा ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ SKM ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ KMM ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾਵਤ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MSP ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 334 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਿਛਲੇ 47 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਖੇ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 11 ਜੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਆਈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲ ਪਲ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਜੋ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ 10 ਨੂੰ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਊਗੀ,
ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ कि सतिंदर सिंह और पत्रकार साथियों, इंद्रजीत सिंह कोटपुड़ा और सुखजीत जी ने बता दिया चिट्ठी के बारे में। तो यह चिट्ठी दोनों फोरमों की ओर से लिखी गई है। अभी हमारी सुबह इंद्रजीत सिंह कोटपुड़ा की अध्यक्षता में एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की मीटिंग हुई थी, फिर दोनों फोरमों से चर्चा हुई, चर्चा के बाद चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी को हमारे मानयोग जो साथी कल आए थे उन साथियों को सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी और पूरे जो कमेटी आई थी उन सबको ये चिट्ठी व्हाट्सएप के माध्यम से सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेज दी जाएगी और आपको ये चिट्ठी जो है जनतक कर दी गई है। इस चिट्ठी में जो साथी हमारे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का हालचाल जानने के लिए कनौरी मोर्चे पर आए और शंभू मोर्चे के हालातों को जानने के लिए आए, दोनों मोर्चों पर आए। उन्होंने 15 तारीख की जो हमें चिट्ठी दिखी थी पटियाला में मीटिंग के बाबत, उसकी जो हमने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हालातों को देखते हुए, इस मौजूदा खनौरी मोर्चे पर हालातों को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को डल्लेवाल जी को देखते हुए उन भाइयों से हमारे जो सहयोगी हैं, दूसरे एसकेएम वाले हैं, साथी हैं, उनको यह अपील की है, प्रार्थना की है कि कल या परसों में ये मीटिंग खनौरी मोर्चे पर कर ली जाए ताकि हमारी जो हालात हैं आज जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की स्वास्थ्य को लेकर भी हम खनौरी मोर्चा छोड़ के बाहर जाने में असमर्थ हैं। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि वो साथी जो हमारे एसकेएम नॉन पॉलिटिकल हमारे सीनियर साथी आए थे, इस हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए जल्द कल या परसों में हमारे साथ मीटिंग में शामिल होंगे। प्रेस वाले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से पहले हमारे सभी सम्मानित साथियों ने लगभग तमाम मुद्दा आपको बता दिया है। जो चिट्ठी हमने एज इट इज लिखी है वो चिट्ठी आपको सुखजीत सिंह हरदो झंडे जी ने वो चिट्ठी आपको दिखा दी, जो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम की तरफ से लिखी गई है। उसका जो संक्षिप्त में जो सार है वर्ड टू वर्ड का, वो हिंदी का भी हम आपको बता देते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा को वो चिट्ठी लिखी गई है एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम की तरफ से। माननीय आप सभी सम्मानित साथी कल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का हालचाल जानने के लिए खनौरी मोर्चे पर आए। हम दोनों मोर्चों की तरफ से आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों पर जो हमारा आंदोलन चल रहा है, इन तमाम मांगों को जो अलग अलग समय पे सरकारों ने वायदे भी किए हैं उनको लागू कराने में सहयोग करेंगे। पिछले 47 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की नाजुक हालत को देखते हुए हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपसी मीटिंग को कल या परसों खनौरी मोर्चे पर कर लिया जाए, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य के मद्देनजर एक एक पल बड़ा कीमती है और अब मोर्चा छोड़कर कहीं बाहर जाने की स्थिति में नहीं है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप हमारे इस विनम्रता पूर्वक वाले निवेदन को स्वीकार करेंगे। सह धन्यवाद संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा। इसके अलावा साथियों, जो परसों मेडिकल टेस्ट किए गए थे, उन मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट कल आई, उसके बारे में भी जो रिजल्ट आया है वो बड़े चिंताजनक है। जिस तरीके से, बाकी डिटेल में तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, कल वो इस पे पूरा अपना एनालिसिस करके पेश करेंगे। जो मेन तौर पे जो चीज है, यूरिक एसिड है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। जो नॉर्मल इंसान का 3.50 से लेके 7.20 तक होना चाहिए, वो 11.64 से भी ज्यादा है। इसके अलावा जो और टेक्निकल टर्म्स हैं, मेडिकल टर्म्स हैं, उसके अनुसार जीजीटीपी है, वो भी उनका काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। बिलिरुबिन टोटल है, वो भी काफी ज्यादा उनका बढ़ा हुआ है। टोटल प्रोटीन है, वो जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए उससे काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा जो कीटोन बॉडी टेस्ट है, जो ये शो करता है कि कोई इंसान कितने दिनों से भूखमरी का शिकार है, कितने दिनों से वो स्टार्वेशन का शिकार है, वो जो रिजल्ट आया है वो भी काफी ज्यादा आया है।
कि कौन बॉडी जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर 0.02 से लेकर 0.27 होना चाहिए, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अंदर 6.53 से भी ज्यादा है। यानी जो नॉर्मल होना चाहिए उससे कम से कम 25 या 30 गुना से भी वो ज्यादा आ रहा है, जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। इसके अलावा जो सोडियम, पोटाशियम और जो क्लोराइड है, उनकी मात्रा भी काफी ज्यादा घटी हुई है। तो साथियों, इस मेडिकल रिपोर्ट को हम सारी को आपसे भी साझा कर देंगे और हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो कल विस्तृत से इस रिपोर्ट पे, मेडिकल रिपोर्ट पे अपनी सारी बातें रखेंगे। इसके अलावा हम आपसे ये भी बताना चाह रहे हैं कि आज तेलंगाना के खम्मन में किसानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के फोटो बैनर लगा के आज धरना प्रदर्शन किया है और पूरे उन्होंने 12 घंटे का ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है जो उनका चल भी रहा है और सांकेतिक भूख हड़ताल उन्होंने करी है। यानी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो अपने शरीर के ऊपर जो कष्ट झेल रहे हैं, जो संघर्ष हो रहा है दोनों मोर्चों के नेतृत्व में हजारों लाखों किसानों द्वारा, वो देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है और ये लड़ाई दिन प्रतिदिन लगातार मजबूत होती जा रही है। आने वाले कल को यानी 12 तारीख को भी हरियाणा के हिसार जिले से किसानों का एक बड़ा जत्था जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के समर्थन में खनौरी बॉर्डर पे आएगा। हिसार जिले के सारे किसान सुबह 10 बजे खेड़ी चौपटा में जो एक नर्सिंग कॉलेज है, भागमल नर्सिंग कॉलेज, उसके सामने इकट्ठे होंगे और वहां से गाड़ियों का बड़ा जत्था डल्लेवाल साहब के पोस्टर लगा के, स्टिकर लगा के वो खनौरी मोर्चे पे आएगा। इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी हरियाणा के अलग अलग जिलों से किसानों के जत्थे यहाँ पे पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, 2 ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦੇਰ ਨੇ, ਤੇਜਵੀਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ੰਭੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਗੂ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ 1-2 ਆਗੂ ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ 5-6 ਆਗੂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਲੈਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ KMM ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ 10 ਆਪਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 15 ਤਰੀਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹ 15 ਤੱਕ ਵੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ 2nd ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਗੂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ और खनौरी बॉर्डर पे की व्यवस्था जी आप कर रहे हैं। मैं कमल भाई आपकी बात से ही मैं एक बात कह रहा हूँ। आपने कहा कि भाई अन्य साथी हैं शंभू बॉर्डर से, वो वहाँ नहीं जा सकते क्या? देखो, कुछ दिन पहले प्रेस का ही एक ये सवाल आया था कि भाई वो साथी चले गए, आप में से नहीं गए। उस समय हमने आपसे निवेदन किया था, जो फैक्ट भी है, कि दोनों फोरमों की बातचीत होके ही वो गए। इस तरह की कोई स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसलिए हमारे साथियों से सत्कार सहित निवेदन किया गया है और ये चिट्ठी प्रॉपर चैनल के माध्यम से हम साथियों को भी भेज देंगे। ये हमारा निवेदन है और इसमें एक पॉजिटिव दिशा में ही सारी चीजें चलने का प्रयास किया गया। 4 आगू उधरों हो जाते, कोई 1-2 आगू इधरों हो जाता, इस तरीके का फॉर्मूला नहीं बन सकता। देखो, मुद्दा क्या है, मेन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आपसी विचार चर्चा, आपसी तालमेल, एकजुटता, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने साथियों को अपना संदेश भेजा है। आज साथी हमारा जिस तरीके से जवाब देंगे, सौहार्दपूर्ण माहौल में उस चीज को एकजुटता की तरफ आगे जेकर वो नहीं मानते खनौरी मीटिंग करने लगे, फिर पटियाले जाओगे या फिर नहीं होगी? हाँ, नहीं, मीटिंग हो पक्का होगी। अगर वो मान लो उनकी कोई मजबूरी आ, कोई जिल्त है नहीं कि नहीं मनना, कोई उनकी मजबूरी हुई, कोई आगू किसी ने दूसरी स्टेट तो आना होया ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ KM ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ठीक है सर।